So simply, we'll start with the proclamation for the person absconding under section 82. So you need to mark these things that if the court has reason to believe, whether after taking evidence or not, and any person against whom a warrant has been issued. So mark this, against whom a warrant has been issued. It means that the proclamation can be published against not only the persons who are accused, but any person against whom the warrant has been issued. This is a very wide clause. Against whom a warrant has been issued by it has absconded or concealing himself. In legal terms, absconding literally means to hide oneself in ordinary sense. It doesn't mean that the person should run away. It includes these things that the person has run away from the process of law, but it also includes that that if any person is hiding himself to protect him from the compulsive process of law or to answer the charge that has been leveled against such person in the law court, then that person can be said to be absconding. सो इसको आप टेक्निकल भाषा में कहते हैं अंडरग्राउंड होना. सो अंडरग्राउंड होना विल इंक्लूड absconding and concealing himself also. Then such court may publish a written proclamation. So mark the word published. Section 82 uses the word publishing because it wants the court to publish the proclamation. When you publish it, it is in the public domain. All right. Because there is a difference between issue of it and publishing of it, and I'll explain to you when we get to the next section. The court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified time and place. So proclamation must specify time and place, like summons, and it cannot be for any period less than 30 days. So mark this period of 30 days from the date of publishing such proclamation. So if we publish a proclamation against a person A today, then the demand for his appearance in the court cannot be for a period less than 30 days. It has to be at least 30 days. We need to give the accused or the person against whom the warrant has been issued time of at least 30 days to appear before the court. All right. And 30 days shall be counted from the date of publishing the proclamation. Now subsection 2 of 82 says the proclamation shall be published as follows. The first point is that it should be publicly read either by the loudspeaker or by any other method. And the second point is that the copy shall be affixed to the house or homestead of such person against whom the warrant has been issued. And the third point is that a copy of it shall be affixed in the courthouse as well. If you read the newspapers, you will always find these proclamations being published in the newspapers also. Subsection 2, clause 2 of section 82 says that the court may, if it thinks fit, direct a copy to be published in a daily newspaper circulating in a place where such person ordinarily resides. So court, if it desires, it may also publish a copy in newspapers. But keep in mind that 82 subsection 2 clause 1 A, B, C are mandatory in nature, while clause 2, where the court may publish it in newspaper, it's directory in nature. Court may or may not do so. Now subsection 3 says where the court issuing proclamation records a statement in writing to that effect that it was duly published, it shall be considered a conclusive proof. A conclusive proof is simply defined as, in a layman's term, that once a certain fact has been declared to be conclusive proof, the court will not allow any evidence to disprove that fact. मतलब अगर मान लीजिए कोर्ट ने एक चीज़ का presumption ले लिया कि ये है और उसको conclusive proof law ने declare किया हुआ है, तो अब आप कितना भी evidence दे दीजिए उसको गलत साबित करने के लिए, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन कोर्ट विल नॉट अलाउ एनी एविडेंस टू डिस्प्रूव सच फैक्ट. ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ. अब ये मैटर एविडेंस का अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. सो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ इसके लिए. अब सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए प्रोविजन है. अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तभी डिक्लेयर होता है, और ये थोड़ा सिवियर प्रोसीजर है, कि जब ऑफेंस जिसका चार्ज हो ये अक्यूज पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जिसके खिलाफ वारंट इशू हुआ है. ही शुड बी एन accused person, and
the offense of whose charge he has to answer should relate to murder, robbery, dacoity, etc., culpable homicide, and 436. So the entire list has been given under subsection 4. So for to declare a person as a proclaimed offender, the warrant that has been issued must be first relating to an accused person. प्रोक्लेमेशन जो आप जनरल इन नेचर करते हैं सेक्शन 82 में, वो तो किसी भी पर्सन के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने के लिए सब सेक्शन 4 क्या कहता है? वेयर द प्रोक्लेमेशन इज पब्लिश्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन और such person even after giving time to him fails to appear at a specified place and time, court may after making such inquiry as it thinks fit pronounce him a proclaimed offender. तो ध्यान रखिए, ये accused होना चाहिए और ये he should actually fail to comply with the proclamation as was published earlier, तभी proclaimed offender होगा. तो सेक्शन थोड़ा strict है, ठीक है. Moving further, we go to section 83 directly. In section 83, the court issuing proclamation. Now, section 83 is using the word issuing, but section 82 use the word publishing. See, when the court decides, जब कोर्ट ने ऑर्डर बनाया है ना, तो वो ऑर्डर इशू करना कहलाता है. जब कोर्ट वारंट इशू करता है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर बनाया दे दिया, लेकिन अभी हो सकता है पब्लिक डोमेन में अनाउंस नहीं किया हो, तभी 82 कहता है कि पब्लिश करना होगा आपको 30 दिन के लिए. पर 83 अलाउ करती है उस स्टेज को जो इशूइंग स्टेज है, कि मतलब जैसे ही कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन करने का ऑर्डर डिसाइड किया, इसलिए यहाँ पे इशू शब्द का यूज हुआ है. तो इट सेज द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड. ये जुडिशियल ऑर्डर है तो इसके रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग रीजंस ऑन मटेरियल होना चाहिए. एट एनी टाइम आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर अटैचमेंट of any property, be it movable or immovable or both, belonging to the proclaimed offender. तो कोई भी प्रॉपर्टी जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में है वो सारी कोर्ट अटैच कर सकता है. ये कंपल्सिव प्रोसेस है एंड इट इज सिवियर. प्रोवाइडेड वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इन रिलेशन टू whom proclamation is issued is about to dispose of the whole or any part of his property, or is about to remove whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court, it may order attachment simultaneously with the issue of proclamation. proclamation के issue होते ही वो attachment भी order कर सकता है इस proviso में, exceptional clause में. तो उसके लिए क्या satisfied होना चाहिए? He is about to dispose of whole of his property or any part of his property, or is about to remove the whole or any part of his property from local jurisdiction of the court. ये काफ़ी कुछ मिलता है ऑर्डर 38 से, जिसमें भी अटैचमेंट ऑफ प्रोविजन है. ऑर्डर 38 रिलेट CPC की बात कर रहा हूँ, तो इट इज़ सिमिलर टू दैट इन दैट रिगार्ड्स. Such order shall authorize attachment of any property belonging to such person within the district which is made. तो जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोक्लेमेशन हुआ है और उसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर गया है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में तो सीधे हो जाएगा. एंड इट शैल ऑथराइज अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विदाउट सच, मतलब आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट है, जब उसमें एंडोर्समेंट DM का हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, उसमें एंडोर्समेंट ज़रूरी है. ये प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है दैट हैज़ टू बी फॉलोड. If the property ordered to be attached is debt or movable property, attachment under this section shall be made by seizure, या कोई रिसीवर अपॉइंट हो जाए. रिसीवर एक इंडिपेंडेंट आर्म ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है जो कोर्ट को आंसर करता है. वो खुद ही ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी या डेब्ट या मनी या जो भी है उसे कस्टडी में ले ले. सीजर का मतलब होता है फिजिकल पोजेशन. और सब फिर आगे पढ़ते हैं. आगे कहता है द ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू अ प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनीवन ऑन हिज बिहाफ. तो ऑर्डर इन राइटिंग भी कोर्ट का हो सकता है कि मान लीजिए किसी को डेप्ट देनी है उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को या उसके किसी रिलेटिव को जो उसके बिहाफ पे मनी कलेक्ट कर रहा है या कोई प्रॉपर्टी कलेक्ट कर रहा है, तो उसको प्रोहिबिट कर सकता है कोर्ट कि नहीं, आप उसे नहीं डिलीवर करेंगे. और बाय ऑल और एनी सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट. ये सारे मेथड्स या कोई और भी मेथड जो कोर्ट को सही लगे वो उसके हिसाब से अटैचमेंट कर सकता है. ये ध्यान रखिए, सारा कंपल्सिव प्रोसेस है.
The point of all of this is to make sure that such person appears before court. ठीक है, लेकिन ये है सिवियर प्रोसेस. आपने देखा होगा समन से वारंट, वारंट से प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन से अटैचमेंट, तो सिवियर होता जा रहा है. If property ordered to be attached is immovable property, the attachment under this section shall in the case of land paying revenue to the state government, तो collector of the district करेगा in which the land is situated, and in all the other cases by taking possession or by appointing a receiver or by writ or by order in writing prohibiting payment of rent. मतलब मान लीजिए कोई टेनेंट है जो रेंट पे करता है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लैंडलॉर्ड है, या प्रोक्लेम्ड जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन किया हुआ है वो लैंडलॉर्ड है, तो उस सिचुएशन में जो रेंट की डिलीवरी है उसको भी प्रोहिबिट कर सकता है कि आप उसे नहीं देंगे, इनफैक्ट कोर्ट को देंगे ये. और बाय ऑल टू ऑफ सच मेथड्स एज द कोर्ट थिंक्स फिट, तो कोर्ट इनमें से कोई भी मेथड चाहे तो यूज़ कर सकता है. ऑलराइट, चाहे वो सारे मेथड एक साथ यूज़ कर ले, चाहे वो इनमें से एक यूज़ करे, इट इज़ नाउ द कोर्ट्स डिस्कशन. हाँ, लेकिन कोर्ट जो भी मेथड यूज़ करेगा it has to have reasons to be recorded in writing. If the property ordered to be attached consists of livestock or is of perishable nature, मान लीजिए अनाज है, सड़ सकता है, तो कोर्ट में if it thinks fit, it's expedient, मतलब ज़रूरी है और self serving nature है, then order immediate sale of such property order immediate sale thereof, उनको तुरंत सेल पे रख देगा. एंड इन सच केस जो भी सेल के बाद जो भी प्रोसीड्स आती है, मतलब जो मनी कलेक्ट होता है या कंसिडरेशन कलेक्ट होता है, तो वो कोर्ट अपनी ट्रेजरी में स्टोर करके रखेगा और इसको पता चलेगा आपको कि आगे ऐसा वो करता क्यों है. और जो प्रोसीड ऑफ द सेल जो भी होंगी वो कोर्ट के फर्दर ऑर्डर से अबाइड करेंगे. और जो पावर और ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिसाब से चलेंगे. तो ऑर्डर 40 में बताया गया है कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ रिसीवर. इनफैक्ट कोर्ट ऑर्डर 40 पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव नहीं है, कोर्ट और भी कंडीशंस लगा सकता है अगर चाहे. ठीक है, तो यू कैन रिफर ऑर्डर 40 ऑफ द CPC इफ यू वांट टू. अब सेक्शन 84 आगे क्या कहता है कि इफ द क्लेम इज प्रेफर्ड टू और ऑब्जेक्शन इज मेड रिगार्डिंग अटैचमेंट हुआ है सेक्शन 83 में, तो वो कोई भी क्लेम जो है 6 मंथ्स के अंदर करना चाहिए उस कोर्ट के अंदर जिसने अटैचमेंट किया है. ठीक है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन. तो ये प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए जिसका इंटरेस्ट हो सकता है गलती से अटैच कर लिया गया हो. On the ground that the claimant or objector has an interest in the property and such interest is not liable to attachment. So जो ground वो claim करेगा वो ये है, यही objection होना चाहिए that such interest is not liable to attachment under section 83, और वो उसका interest है जो attach कर लिया है, ना कि proclaimed person का interest. The claim or objection shall be inquired into and may be allowed or disallowed whole in part. तो चाहे वो allow करेगा चाहे वो disallow करेगा, उस पर एक inquiry होगी. Provided any claim preferred or objection made within the period allowed by this subsection may in the event of death of the claimant be continued by legal representative. तो legal representative उसको continue कर सकते हैं if they want to. Then जब कोई claim और ऑब्जेक्शन प्रेफर हुआ है अटैचमेंट के खिलाफ जो सेक्शन 83 में हुआ है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी अटैच हुई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर है वो अपना अटैचमेंट का क्लेम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में करेगा. ये सबसेक्शन 2 प्रोवाइड करता है. क्लेम्स और ऑब्जेक्शन इन सबसेक्शन 1 में बी प्रेफर्ड और मेड बाय अ कोर्ट in whose order attachments is issued, or if the claim or objection in respect of the property attached under the order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of chief judicial magistrate of the district in which whose attachment is made. तो अगर within the district है तो आप सीधे उसी कोर्ट के पास जा सकते हैं जिसने अटैचमेंट किया. लेकिन जो एंडोर्समेंट वाली बात है कि मान लीजिए अटैचमेंट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो सेक्शन 83 क्या कहता है, उसमें डीएम का एंडोर्समेंट होना चाहिए. जब अटैचमेंट आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उस सिचुएशन में यू विल अप्रोच द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू प्रेफर योर क्लेम और अटैचमेंट.
Every such claim or objection shall be inquired into by court in which it is preferred or made, provided that if it's preferred or made in the court of chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him. अब ये है कि अगर क्लेम डिसअलाउ हो गया तो क्या होगा? क्लेम अगर डिसअलाउ हो गया इन वोल और इन पार्ट बाय द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1, तो 1 ईयर के अंदर वो एक सिविल सूट एस्टैब्लिश कर सकते, सिविल सूट दायर कर सकते हैं अपना राइट एस्टैब्लिश करने के लिए, बट सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ सच सिविल सूट ये ऑर्डर कंक्लूसिव माना जाएगा. एंड कंक्लूसिविटी ऑफ द ऑर्डर आपको समझना चाहिए. वंस द ऑर्डर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी कंक्लूसिव, देन नो फर्दर पैरेलल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड. पैरेलल प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ, एपेलेट और रिविजनल प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मतलब आप दोबारा सेम क्लेम को इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते. सो रिलीज एंड सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन टाइम पे आ जाता है तो अटैचमेंट वो हटा दिया जाएगा. अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आता है टाइम पे तो क्या होगा? देन द प्रॉपर्टी शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, पर उसको सेल नहीं किया जाएगा अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स. क्योंकि 6 मंथ्स के अंदर क्लेम और ऑब्जेक्शन आएगा ना, इसलिए पहले 6 मंथ्स में सेल नहीं किया जाएगा. और अगर क्लेम और ऑब्जेक्शन 6 मंथ्स में आ जाता है तो तब तक नहीं सेल किया जाएगा जब तक क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसाइड ना हो जाए. और अगर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, तो कोर्ट हो सकता है कि उसको सेल करवा दे, क्योंकि उसको उस केस में यही लगेगा कि जो सेल है वो ओनर के बेनिफिट में ही है. अब सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. If within 2 years from the date of attachment, the person whose property is or has been at the disposal of state government under subsection 2 appears voluntary, खुद ही आ जाता है 2 साल के अंदर, या is apprehended and brought before the court, मतलब अरेस्ट हो जाता है या सरेंडर करता है, apprehended or brought before the court, by whose order the property was attached, मतलब उस कोर्ट के सामने जिसने अटैचमेंट किया था या उस कोर्ट के सामने जिसका या उससे सुपीरियर कोर्ट के सामने जिसने अटैचमेंट किया था. लेट अस सपोज जेएम फर्स्ट क्लास की कोर्ट ने अटैचमेंट करवाया था, अक्यूज्ड अपीयर हो गया खुद ही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के सामने, तो ऐसे केस में दोनों सिचुएशन की बात की गई है. और द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को एब्सकॉन्ड नहीं किया था या कंसील नहीं किया था for the purpose of avoiding execution of the warrant, and that he had not such notice of proclamation, कि उसे नोटिस मिली ही नहीं थी, so as to enable him to attend within the time specified therein such property. तो ऐसे केस में क्या होगा? अगर कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है इन दैट सिचुएशन दैट सच पर्सन हैज़ नॉट एब्सकॉन्डेड और उसको नोटिस ही नहीं थी, तो उस सिचुएशन में कोर्ट जो प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न कर देगा. और अगर वो प्रॉपर्टी से सोल्ड की जा चुकी है तो उस केस में जो नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल है या प्रॉपर्टी का रेसिड्यू अगर कोई बच गया, आधी प्रॉपर्टी सेल की है आधी नहीं की है, तो वो सारी चीज़ें रिटर्न कर देगा उसको, आफ्टर सेटिस्फाइंग देयर फ्रॉम ऑल द कॉस्ट विच हैज़ इनकर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस फॉर अटैचमेंट बी डिलीवर टू हिम. तो मतलब कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट, जो पब्लिक ऑफिसर्स गए प्रॉपर्टी अटैच की, ये सारी जो चीज़ें हैं और जितने भी एक्सिलरी कॉस्ट आते हैं इन सारी चीज़ों में, उसको तो उसकी तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो उनको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है. जब वो सेटिस्फाई होने के बाद ही विल रिटर्न वट एवर द रेसिड्यू इज लेफ्ट. अब इसको लेके जो केस लॉ है इस पर ध्यान रखिएगा कि अगर इलीगल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट होता है विदाउट रीजंस तो ये विशिएट हो जाएगा ऑर्डर. द ऑर्डर विल बी विशिएटेड इन दिस सिनेरियो. ऑलराइट, so the most essential condition, जिसको लैटिन में बोला जाता है साइन qua non, for action under section 82 is the prior issue of warrant by arrest. तो सबसे पहली कंडीशन क्या है प्रोक्लेमेशन के लिए? मैं केस लॉस पे आ रहा हूँ. वारंट फॉर अरेस्ट होना चाहिए. मैजिस्ट्रेट के पास ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो वारंट जो जिसके खिलाफ उसने इशू किया है वो अब्सकॉन्ड और कंसील कर गया है. और देखिए 82 में सेक्शन 82 में रीज़न टू बिलीव शब्द का यूज़ किया गया. तो रीज़न टू बिलीव फैक्ट्स पे बेस होता है. रीज़न टू बिलीव
इज बेस्ड ऑन फैक्ट, और उन फैक्ट्स के बेसिस पे एक जुडिशियल सेटिस्फैक्शन जब कोर्ट के दिमाग में आता है, उसके बेसिस से ही वो कंक्लूजन बनाएगा। वो किसी भी ऑफिसर या किसी और पार्टी की एप्लीकेशन पे ऑटोमेटिकली मैकेनिकल मैनर में एक्ट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो द ऑर्डर विल बी कंसिडर्ड फंडामेंटली डिफेक्टिव। तो ऑर्डर मस्ट बी बेस्ड ऑन रीजन टू बिलीव। तो रीजन टू बिलीव किस चीज़ पे होगा कि वो एब्सकॉन्ड कर गया है जिसके खिलाफ वारंट एग्जीक्यूट है। एब्सकॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि भाग गया है, सिर्फ यही नहीं होता कि भाग गया है। एब्सकॉन्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि वो कंसील कर रहा है। अगर आप उसकी हिस्टोरिकल ओरिजिन पे जाएंगे एब्सकॉन्डिंग के वर्ड का, तो यू विल फाइंड इट दैट द पर्सन कंसीलिंग हिमसेल्फ इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ एब्सकॉन्डेड। पर लेजिस्लेचर नए कोड में एब्सकॉन्डेड और कंसीलिंग अलग अलग बताता है, पर अगर वो सिर्फ एब्सकॉन्डेड शब्द का ही यूज़ कर देता तो भी इट वॉज सफिशिएंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लॉज सबसेक्शन 2 ऑफ 82 का क्लॉज 1 A B C आर मैंडेटरी इन नेचर, और जो क्लॉज 2 है सबसेक्शन 2 ऑफ 82 इट्स डायरेक्टरी इन नेचर, ऑप्शनल है, चाहे तो करे या ना करे। और उसके बाद आई कम टू द सेक्शन 83 का जो प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सीवियर प्रोसेस है कंपल्सिव प्रोसेसेस में। आप किसी की भी प्रॉपर्टी अटैच करके कर रहे हो और उसके जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे अगर वो नहीं आ पाया, मान लीजिए सच पर्सन इज पैरालाइज्ड, कहीं एक्सीडेंट हो गया उसका, वो बेहोश पड़ा हुआ है, किसी हॉस्पिटल में उसका किसी दूर दराज स्टेट में इलाज हो रहा है, आपने उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू किया है और फिर क्या कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली और सब कुछ। अब आप तो 30 दिन के अंदर मान लीजिए आपने आने का ऑर्डर दिया, तो और वो नहीं आ पाया, उसका इलाज चल रहा है, मान लीजिए इलाज 6 महीना चला, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में हिज प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड। उसकी प्रॉपर्टी, लेट अस सपोज कि 30 दिन का टाइम दिया गया, ही कुडंट कम, ए का इलाज चल रहा है किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, दिल्ली में ऑफेंस के लिए वो बुलाया गया, और मान लीजिए फॉल्स केस है, अब दिल्ली के ऑफेंस के लिए वो बुलाया गया, अब उसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं एक्सीडेंट हो गया और उसका इलाज चल रहा है, उसको पता नहीं यहाँ पे नोटिस है। अब क्या हुआ, प्रोक्लेमेशन ने 30 दिनों के अंदर आने की बात की, अब इलाज जो उसका चला वो चला फॉर 8 मंथ्स, तो वो ना तो प्रोक्लेमेशन के टाइम पे आ पाया जो डेट और टाइम स्पेसिफाइड था। फिर क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ उसके ना आने का? ये प्रॉपर्टी किसके डिस्पोजल पे हो गई? स्टेट गवर्नमेंट की। और फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई क्लेम और ऑब्जेक्शन भी नहीं आया और स्टेट गवर्नमेंट ने इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ कर दी। तो आप देख रहे हैं ना कि ये कितना सिवियर प्रोसेस है। देखिए किसी की भी प्रॉपर्टी ना ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय की जा सकती। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। So always remember कि these points cannot be allowed to be trifled with so easily by the statutory provisions। इसीलिए कोर्ट कहता है इसका बड़ा स्ट्रिक्ट फॉलोइंग होना चाहिए, इसका कोई मैकेनिकल फॉलोइंग नहीं होना चाहिए। So what are the guidelines of the court? Court has said that the jurisdiction to pass the attachment order cannot be assumed unless the proclamation has been issued। तो पहली बात तो proclamation issue होना चाहिए। नॉर्मल रूल क्या है कि आप 82 के पब्लिश होने के बाद 30 दिन का वेट करिए टू एनेबल द अक्यूज टू अपीयर इन टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। 30 दिन का वेट करिए सो दैट द अक्यूज अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। द वर्ड्स एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन आर नॉट टू बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन। आप आइसोलेशन में नहीं उसको इंटरप्रेट करेंगे। जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है आपको 82 और 83 को हारमोनियसली रीड करना पड़ेगा। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, कि आप सारे प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट को ना हारमोनियसली कंस्ट्रू करते हैं, कभी वॉइड में नहीं कंस्ट्रू करते हैं। सो कोर्ट ने एक नॉर्मल रूल पहले इस्टेब्लिश किया। नॉर्मल रूल क्या है कि नॉर्मली आप 30 दिन का वेट करेंगे आफ्टर पब्लिशिंग द प्रोक्लेमेशन, यू विल वेट फॉलोइंग सेक्शन 82 इज द नॉर्मल रूल। और एक्सेप्शनल रूल क्या है कि जब उस जो कोर्ट जिसने प्रोक्लेमेशन इशू किया है उसका जुडिशियल सेटिस्फैक्शन इस लेवल पे एस्टैब्लिश हो गया कि नहीं, ही विल नॉट कम, कि मतलब जो पर्सन एब्सकॉन्डेड है वो आएगा ही नहीं। और दूसरा कि ही इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ वोल और इज पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिमूव द वोल और पार्ट इज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। और ये जुडिशियल
satisfaction material on record से आया. What is the material on record? By the way of evidence, by the way of affidavits, or by any other means. किसी पुलिस से information मिल गई और या दूसरी चीज़ें मिल गई. तो इन situation में it will be considered that the exceptional scenario has been satisfied and the court concerned can simultaneously with the issue of proclamation can order the attachment. लेकिन ध्यान रखिएगा ये exceptional procedure है. So general rule है you have to wait 30 days, at least 30 days from the date of publishing of proclamation. And what is the exceptional rule? If on the material on record the judicial satisfaction can come to such a conclusion that the accused person has absconded and he is also disposing of his property from the local jurisdiction of the court, so that the court is rendered remediless to compel his presence, then in that scenario he can resort to the exceptional method, that is simultaneously attaching the property of the person against whom the warrant has been issued. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऐसा प्रोविजन को से अप्लाई करने की कोशिश की जिसमें वो अटैच कर देता है प्रॉपर्टी और सेल कर देता है, तो रिमेंबर सेक्शन 461 सेज कि इफ एनी मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू अटैच एंड सेल द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 हिज प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड, विशिएट हो जाएगी. तो रीड इट विथ सेक्शन 461, ऑलवेज रिमेंबर दैट. ये जो प्रोसेस है ना ये जुडिशियल अथॉरिटीज़ के लिए है, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के लिए नहीं है. सो या हो सकता है कि हाई कोर्ट ने एक और आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ. हाई कोर्ट ने कभी कभी वो पावर लिमिट कर देता है नए नए मैजिस्ट्रेट्स की. वो बोलता है लेट सपोज वी हैव अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ही इज़ अ न्यूली अपॉइंटेड मैजिस्ट्रेट. So the High Court knows that in this situation, this magistrate might not have all the information or even the sufficient experience as to how to exercise judicial mind. So in that scenario, the High Court may by notification declare that the second class magistrates are not empowered to attach and sell the property under section 83 of the CRPC. Once that notification has been issued and a second class magistrate actually violates the notification of the High Court or the executive instructions of the High Court, then in that scenario also his proceeding shall be void, because the High Court has not empowered him to do such an act. Generally, if there is no such notification, then since the word court has been used and we have court of the following classes: the court of judicial magistrate, the court of magistrate of first class, and the court of sessions, the high court, and we even have the court of executive magistrate. Keep in mind that by the general rule, the magistrates who are not empowered to act under section 83, if they at all attach and sell the property under section 83, then their proceeding shall be void. Another point relates to revision, that let us suppose there has been an attachment which is illegal in nature. The accused, there has been a foul play by the judicial magistrate. The judicial magistrate is in cahoots with the complainant, or let us suppose he actually is an active party in the false case. He has been corrupted by the use of money or any other means. Then in that scenario also, his proceedings can be set aside in revision. That doesn't relate to voidability as such, but it relates to revision proceeding. When we'll come under section 397 read with 401 of the CRPC, we'll discuss this issue in the most elaborate manner, that what are the powers of revision and what are the powers of appeal, but and what is the difference between appeal and revision. We'll deal with all of that. But for now, know this, that the magistrate not empowered to act under section 83, his proceeding shall be void under section 461 of the CRPC, that has been declared by the legislature itself. Second is, if the magistrate's order of attachment is illegal,
then the revision proceedings can be had. Then what do you do in the case where the person referred to under subsection 3 of 85 whose property has not been delivered to him? मान लीजिए वो 2 साल के अंदर जो आ जाता है ना, वो बताता है मुझे नोटिस नहीं मिली थी और मैं कंसील नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ सेटिस्फाई कर देता है, तब भी कोर्ट अगर उसकी बात नहीं माने तो क्या करेंगे? तो इन दैट सिनेरियो सेक्शन 86 प्रोवाइड्स फॉर अपील इन दैट सिनेरियो. लेकिन 83 का जो अगर प्राइमरी जो कंसिडरेशन है, वो जो अपील का प्रोविज़न है वो आपके लिए उसी के लिए है, क्या कहते हैं, for section 85 subsection 3. Then what do you do where the magistrate has simultaneously with the issue of order attached the property and have sold it? उस situation में क्या करेंगे? In the higher forums you can prefer a revision, and if the magistrate was not at all empowered, his proceedings will be set aside. It will be void, and it will be void ab initio. ठीक है? So learn to read these sections with 461. Now, I think this issue has been sufficiently dealt with for the purpose of examination. देखिए हर इशू में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है. इनफैक्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सफिशिएंट है. ज़्यादातर आपके सामने यही सिचुएशंस आएंगी. बहुत रेयर आप देखेंगे कि अटैचमेंट होता है दिल्ली या बाकी जगह पे. होता है लेकिन ये नॉर्म नहीं है, मैकेनिकल मैनर्स में नहीं होते हैं. अगर कोई भी मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मैकेनिकल मैनर में एक्ट करता है, देन यू नो कि हाउ टू डील विद दोज इश्यूज. तो ध्यान रखिएगा, दिस ऑर्डर हैज़ टू बी ऑन जुडिशियल सेटिस्फैक्शन. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द वारंट शुड हैव बीन इशूड. द सेकंड कंडीशन इज दैट सच पर्सन शुड बी एब्सकॉन्डिंग एंड कंसीलिंग हिमसेल्फ. जनरल रूल इज टू गिव such person time of at least 30 days to appear, and the exceptional rule is if by other strong sufficient evidence, if the magistrate is satisfied that such person is corruptly removing his property outside the jurisdiction of the court and he will not appear on the date of proclamation, and his judicial mind is satisfied, then in that situation what he'll do, he'll simultaneously issue the order of attachment, and if it doesn't appear, the property shall be sold. Now coming to the issue of section 91, it's important, it's very important actually. Summons to produce document or other thing. Whenever the court or officer in charge of police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry or trial. So what is the thing? Production of document or other thing. You need to mark these things. And it is desirable for what? Investigation, inquiry and trial. So mark investigation, inquiry and trial, because we'll see later that these words are missing under section 93. Specifically section 93 clause C, where these words of inquiry and trial are generally missing. Sorry, investigation is generally missing. Section 93 clause 3 will omit the word investigation and will only include the word inquiry, trial or other proceeding. It has omitted the word investigation, while 91 is using the word investigation. So there is a great chasm between the two provisions. ये दोनों provision बहुत ही अलग अलग sphere में काम करते हैं, and there is a complex area of law relating to that. I'll tell you. तो 91 में एक चीज़ लिख लीजिए, 91 कभी accused person को नहीं दिया जा सकता. Section 91 can never be issued against an accused person to produce all those things which will incriminate him. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन होगा. ऑल राइट, सो ऑलवेज बी क्लियर ऑन दैट. ये एक सिंपल पॉइंट है. ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन श्यामलाल मोहन लाल और स्टेट ऑफ गुजरात में उसने डील किया था. सो नो दिस, सेक्शन 91 कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट एन अक्यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल सच एविडेंस और डॉक्यूमेंट विच विल इनक्रिमिनेट इट. मान लीजिए फॉर्जरी का मैटर है या ये बाकी का मैटर है, and you know, the police officer or the court knows that this person is in possession of it, he's the accused person, and now you're demanding him under section 91 to produce all those documents. So the self-incriminatory evidence हो जाएगा. So section 91 in its true construction cannot at all be used against the accused. जो भी नेम किया गया accused में,
91 उस पर नहीं अप्लाई करता। ये 91 बाकी सब पे अप्लाई करता है, विटनेसेस पे अप्लाई करता है, किसी थर्ड पर्सन पे अप्लाई करता है, पर ये अक्यूज्ड पर्सन पे सेल्फ इंक्रिमेटिंग एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए नहीं अप्लाई करेगा। So going further under section 91, for the investigation, inquiry or trial or other proceeding under this code or before such court or officer, such court may issue a summon or officer a written order to produce to the person in whose possession or power such document or other thing is believed to be, requiring him to attend and produce it or to produce it at a time and place stated in the summons and order। ठीक है, तो रिटन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है तो रिटन एंड वो क्या कहते हैं रिक्विजिशन करेगा बाय रिटन ऑर्डर, और अगर कोर्ट है तो समन करेगा। आपको पता है समन का वायलेशन होगा, सो 174 में कुछ उसके पनिशमेंट है। Any person required under this section to merely produce a document or other thing shall be deemed to have been complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। अगर मान लीजिए उसकी जो सिर्फ डॉक्यूमेंट मंगाने को बोला है उन्होंने आप उनकी पर्सनल प्रेजेंस डिमांड नहीं किया साथ में, तो और बाय द ऑर्डर या समन से बस इतना लगता है कि डॉक्यूमेंट का प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर सच पर्सन टू एक्चुअली हैव द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड और बी सेंट टू सच SHO और कोर्ट, बट इट नीड नॉट बी नेसेसरी फॉर हिम टू पर्सनली अपीयर इन सच केस। अब नथिंग आता है सबसेक्शन 3 में। व्हाट इज़ नथिंग? इट इज़ अ सेविंग क्लॉज। तो ये किसको सेव कर रहा है? सेक्शन 123 और 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट को। 123 आपको किस चीज़ से रिलेट करता है? इस पे एक मैगजीम है, क्या कहते हैं, सेल्यूस पोपुली सुप्रीमा लेक्स। दिस इज अ मैगजीम अंडर सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और 123 के जितने भी मैटर्स होते हैं वो स्टेट सीक्रेट्स में आते हैं, तो इसमें जब तक स्टेट का जिस भी डिपार्टमेंट का हेड नहीं सर्टिफाई कर देता कि इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, टिल देन डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सेटेड और कैन नॉट बी समन्ड। अब इसके भी अपने नुआंसेस हैं एविडेंस एक्ट में, तो डोंट गो इनटू दैट राइट नाउ यू नीड टू नो कि किस पे नहीं अप्लाई करता है, वरना अभी एविडेंस पे ही लेक्चर हो जाएगा। और 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पे नहीं अप्लाई करता। व्हाट इज़ 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट? आई टेल यू। 124 ऑफ द Indian Evidence Act are the official communications where it says that no public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, क्योंकि जिससे अगर पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र कर जाएंगे उस डिस्क्लोजर से। 123 क्या है? जहाँ पे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन स्टेट के, और तो उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की परमिशन लेना होगा। ही कैन विदहोल्ड और ग्रांट सच परमिशन एज ही थिंग्स फिट, तो उसका डिस्क्रेशन है। अब इसके भी नुआंसेस हैं, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हेल्ड हुआ है, सो I'll not go into that right now. I'll just tell you what are the nuances of section 91 of the CRPC। तो बैंकर्स बुक ऑफ द एविडेंस एक्ट पे नहीं अप्लाई होता है, उनका भी स्पेशल लॉ है, और आपको जानते हैं जनरल लॉ स्पेशल लॉ की डेरोगेशन में काम नहीं करता। और it wouldn't apply to letter, postcard, telegram or other document in और पार्सल थिंग इन कस्टडी इन पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो 91 उस पर नहीं अप्लाई करता। 91 जनरल इन नेचर है, तो आपके कोई भी कोर्ट कर सकता है और कोई भी SHO कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ही कर सकता है, यहाँ पे आयो शब्द का यूज़ नहीं है। 92 में आपकी अथॉरिटी बताई हुई है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या पार्सल पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी में है तो DM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ही फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी से कोई आपको डॉक्यूमेंट लेना है और जो कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में मदद का काम करेगा, तो इन दैट सिनेरियो यू नीड टू टेक परमिशन ऑफ दीज अफोरमेंशन्ड अथॉरिटीज़, DM, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। ऑलराइट, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और ऑफिसर को लगता है कि अभी उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, और जब आपने परमिशन के लिए तो अप्लाई किया है इन अथॉरिटीज़ को, तो तब तक के टाइम में क्या करेंगे? 92 का सबसेक्शन 2 कहता है कि तब तक के टाइम के लिए, जब तक आपकी परमिशन आपकी मिली है, तो मिल रही है, तो चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, चाहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, या कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, ही में रिक्वायर कर सकता है कि वो जो
डॉक्यूमेंट या पार्सल है जिसको आप चाहते हैं कि आपके सामने प्रोड्यूस किया जाए, कि उसको टेलीग्राफ अथॉरिटी या पोस्टल अथॉरिटी ढूंढ के डिटेन करे, और जब परमिशन मिल जाए इन अफोरमेंशन अथॉरिटी से तो उनके सामने प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 उस बात से रिलेट करता है। अब सर्च वारंट पे आते हैं सीधे। I'll go into the case law and nuances, पर सर्च वारंट आपको बताना ज़रूरी है। When the search warrant may be issued, when the court has reason to believe, अब देखिए यहाँ पे reason to believe आ गया, so mark the word reason to believe, that the person to whom summons or order has been issued or a requisition has been issued under subsection 91, section 91 subsection 1 of section 92 has been or might be addressed would not or would not produce a document or thing as required by summons or requisition, और फिर और लग गया, तो ये क्लॉज डिसजंक्टिव है, ये क्लॉज अपने स्फीयर में काम करता है। तो एज फार एज 93(1) इज कंसर्न, ये भी अक्यूज्ड पे नहीं काम करेगा, ये जनरल विटनेसेस या बाकी किसी भी व्यक्ति पे काम कर सकता है, पर 93(1) क्योंकि वो उन सिचुएशन से डील कर रहा है जो 91 में फॉल करती हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में फॉल करती हैं, तो ये भी अक्यूज्ड के खिलाफ नहीं यूज़ हो सकता। और फिर और लगा हुआ है लास्ट में, देखिए और लगा हुआ है, और का मतलब है कि अब ये क्लॉज डिसजंक्टिव है, ये अपनी स्फीयर में काम कर रहा है, इसका रेल्म अलग है। और बी, वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। अब ये दूसरी चीज़ है, ये जनरल इन नेचर है, जब कोर्ट को पता ही नहीं है कि किसकी पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट, तो एक जनरल सर्च का ऑर्डर दे सकता है। और सी, वेयर द कोर्ट कंसिडर्स दैट द पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। नाउ यू सी इन क्लॉज सी, इन्वेस्टिगेशन वर्ड मिसिंग है। ये जो इन्वेस्टिगेशन का ओमिशन है ना, ये डेलिबरेट है, लेजिस्लेचर ने जानबूझ के वर्ड इन्वेस्टिगेशन यहाँ से हटाया है। और एक मैक्सिम है, वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रिजेंडम, फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लॉ देयर इज नो डिपार्चर। तो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर हमको क्या मिलता है इन बाय द वे ऑफ ओमिशन। ये जो ओमिशन किया है ना लेजिस्लेचर ने, जानबूझ के किया है, वो इसलिए किया है कि आप जो सर्च वारंट का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 93, वो आप इंक्वायरी, ट्रायल या बाकी प्रोसीडिंग के लिए तो कर सकते हैं, पर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं कर सकते। तभी 91 और 92 और इवन सेक्शन 93 का सबसेक्शन 1A उन सिचुएशन से डील करता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है, पर बी और सी जो कि डिसजंक्टिव क्लॉजेज हैं, अलग अलग क्लॉजेज हैं, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन का मेंशन नहीं है, ठीक है। बी फिर भी एक जनरल प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए कोर्ट को पता ही नहीं है कि किसकी कस्टडी में ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो एक जनरल सर्च वारंट हो सकता है। लेकिन सी स्पेसिफिकली कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो आप ऐसा सर्च वारंट नहीं इशू कर सकते, जो सी का रेल में। सी कहता है कि जब इंक्वायरी या ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग के लिए उसको सही लगता है तो जनरल सर्च या इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है। अब ये जो ऑर्डर हैं बी और सी में, ये तो अक्यूज्ड के खिलाफ भी जा सकते हैं, पर 91 का नहीं जा सकता था। सो ऑलवेज कन्फाइन द रेम्स ऑफ द लॉ वेयर इट फिट्स। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा यही प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है कि बी और सी अक्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आगे क्या कहता है कि इट में इशू अ सर्च वारंट एंड द पर्सन टू whom such warrant is directed may search or inspect in accordance therewith and the provisions herein after contained. The court may, if it thinks fit, specify in the warrant particular place or part. तो पहला क्या वारंट में प्रिस्क्राइब कर सकता है, चाहे तो प्लेस या पार्ट to which the search or inspection shall extend, कि कहाँ तक extend करेगा। And the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only that place and or that part so specified. अगर कोर्ट ने स्पेसिफाई कर दिया, लेट्स सपोज कि सर्च वारंट सिर्फ आपके एक कमरे से रिलेटेड है, सर्च वारंट इज रिलेटेड टू योर क्लोथ्स, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, क्या होगा इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में जो सर्च वारंट है वो जब पुलिस ऑफिसर्स या जो भी अथॉरिटी को कोर्ट ने डायरेक्ट किया है वो जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसी कमरे तक ही कन्फाइंड रहेंगे, उसी कमरे जो भी इस्टेब्लिश किया कोर्ट ने, जो भी प्लेस या पार्ट ऑफ द प्लेस जो उसने डेजिग्नेट किया वहीं तक सर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब
सब सेक्शन 393 का फिर एक सेविंग क्लॉज आ जाता है कि मेरली बिकॉज हमने एक जनरल सर्च वारंट्स के प्रोविज़न बना दिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के प्रोविजंस को डिफीट कर दें। तो सेविंग क्लॉज उसी प्रोविज़न को बचाने के लिए कि ये है 92 के मैटर्स पे नहीं अप्लाई करेगा, 92 के मैटर्स पे आपको डीएम, सीजेएम और जो भी अथॉरिटीज़ मेंशन है उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सो नाउ विल डील विद द नुआंसेस एज आर कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। तो श्याम लाल मोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बात सफिशिएंटली हेल्ड की दी गई थी कि 91(1) जो नए कोर्ट का है ये पुरानी सीआरपीसी के 94 के सबसेक्शन 1 से मिलता जुलता है पूरी तरीके से। तो उसको डील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ये इंटरप्रिटेशन रखा था कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 अप्लाई करेगा इन द मैटर्स व्हेन the summon or the requisition under section 91 has been issued against the accused। नई CRPC के section 91 में जब वो accused को दिया गया है तो इसके अंदर it comprehends within its sweep a person accused of an offence and if it does whether the issue of क्या कहते हैं then the issue of summons or to produce a document in his possession and power will violate the immunity against self-incrimination guaranteed under Article 20 Clause 3। ये मेजॉरिटी ओपिनियन जो हैंड डाउन हुआ था वो जस्टिस सिकरी के थ्रू हुआ था और उन्होंने दोनों प्रोविजन को देखा था, पुरानी सीआरपीसी को भी देखा था, वो पुरानी सीआरपीसी ऑफ 1898 उसका सेक्शन 94 का सबसेक्शन 1 एंड द करेंट सीआरपीसी दैट वी हैव ऑफ 1973 उसका सेक्शन 91 आर सिमिलर। तो मेजॉरिटी ओपिनियन क्या हुआ था कि सेक्शन 91(1) of the new court does not take within its sweep a person accused of an offence, which would mean that the summon issued to an accused person to produce a document considered necessary, that the summon accused to a person, the summon issued to an accused person to produce a thing or document considered necessary or desirable for the purpose of investigation, inquiry or trial would imply compulsion माना जाएगा and document or thing so produced would be treated as self-incriminatory testimony and hence violative of Article 20 Clause 3। कौन से केस में हेल्ड हुआ था? श्यामलाल मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 14 दिसंबर 1964 को वो हेल्ड हुआ था। नाउ जो मैंने ये जो बात बोली कि 93 का 1A एक्यूज पे नहीं अप्लाई करता और बाकी बातें बोली वाइल बी और सी अप्लाई करते हैं, वो किस ग्राउंड पे बोली उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। VS पिल्लाई वर्सेस रामाकृष्णन एंड अनदर ऑन 18 सितंबर 1979 को डिसाइड हुआ था। इसमें भी कोर्ट ने यही बात बोली थी कि 93(1)(a) cannot be issued by the court for the obvious reason that it can only be issued where the court would have issued summons but would not issue the same under the apprehension that the person to whom such summons is issued will or would not produce the thing as required by such summons or requisition। A search warrant under section 93(1)(a) could only be issued where a summons could have been issued under 91 but the apprehension is that such person will not obey the summons। तो 93 का जो 1A है वो तो रिलेट करता है 91 से और 91 आपको पता है अक्यूज पर्सन के खिलाफ यूज नहीं हो सकता, तो बाय दैट कंस्ट्रक्शन इट वुड नॉट अप्लाई टू एन अक्यूज पर्सन। पर 93 का 1B उस सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करता है जहाँ पे सर्च वारंट इस बात पे इशू किया गया है जहाँ पे पता ही नहीं है कि किसकी कस्टडी में डॉक्यूमेंट है। In other words, a general search warrant has been issued to procure a document or thing and it can be recovered from any person who may be ultimately found in possession of it and it was not known to court that the person from whose possession it was found was in possession of it। तो 91 में तो आपने जब किसी पर्सन को जब आप इशू करते हैं सेक्शन 91 में तो आपको पता होता है ना इसकी कस्टडी में डॉक्यूमेंट है, तभी तो आपने उसको पर्सनली अपेयर किया। लेकिन जब आप सर्च वारंट के लिए अप्लाई करते हैं 93 के 1B में तो आपको पता ही नहीं है कि किसके पास है वो डॉक्यूमेंट या थिंग जिसकी रिकवरी मटेरियल है।
तो इसमें अक्यूज पर्सन भी आ जाता है, क्योंकि ऐसे में सेल्फ इंक्रिमिनेटरी टेस्टिमनी थोड़ी ना होती है, वहाँ पे तो एक पैसिव सर्च हो रही है, कोर्ट को तो पता ही नहीं है कि उसकी पोजीशन में, तो हाउ कैन बी कंसिडर्ड टू बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 23। पर हाँ, इसके लिए ध्यान ये रखना चाहिए कि ये फिर नहीं, सच में नहीं पता होना चाहिए कि अक्यूज की कस्टडी में कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या पोजीशन है। यही प्रिंसिपल है सेक्शन 93 का। और सेक्शन 93 का 1C किस सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करता है? वो एक जनरल सर्च वारंट की सिचुएशन को कॉम्प्रिहेंड करता है कि आप उसके एग्जीक्यूशन में आप किसी प्रेमिसेस को भी सर्च कर सकते हैं, चाहे वो अक्यूज्ड के पोजीशन में हो या ना हो, और किसी भी आप क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट जो भी अक्यूज की पोजीशन में, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे केस में अक्यूज कोई पार्टिसिपेट थोड़ी ना करता है, वो तो एक पैसिव स्पेक्टेटर होता है। तो सर्च कैन बी कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वारंट और अक्यूज की प्रेजेंस में की जा सकती है, मेयरली बिकॉज ही इज ऑक्यूपाइंग द प्रेमिसेस। सिर्फ इस बात पे कि उसके घर में सर्च हो रही है, उसको सेल्फ इंक्रिमिनेटरी टेस्टिमनी नहीं माना जाता है। ऑलराइट, a passive submission to search cannot be styled as a compulsion on the accused to submit to search, and if anything is recovered during search which may provide incriminating evidence against the accused, it cannot be styled as a self-compelled testimony. And this is a very obvious reasoning. Search of the premises occupied by the accused without the accused being compelled to be a party to such search would not be violative of constitutional guarantee under Article 23. सर्च के और भी प्रोविजन है, ध्यान रखिएगा, वो है 165 ऑफ द CRPC में, यहाँ पे पुलिस करती है, और 166 ऑफ द CRPC ऑल्सो। तो ऑलवेज रीड दीज प्रोविजंस होलिस्टिकली। ऑलराइट, ये इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर में ख़त्म करवा चुका हूँ इससे। नाउ अब एक आर्गुमेंट इसमें हुआ था कि क्या सेक्शन 93 के C को 1A के बेसिस पे पढ़ा जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया था। उसने बोला था कि पहली बात तो है कि एक डिसजंक्टिव है और से शुरू हुआ है, और दूसरी बात इसमें ये है कि यू कैन नॉट कट डाउन द पावर ऑफ द कोर्ट बाय इम्पोर्टिंग इनटू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 91A व्हेन इट डजंट स्पेसिफिकली अप्लाई टू इट, ठीक है, या 91B जहाँ पे कोर्ट को ये नहीं पता होना चाहिए कि किसी के प्रेजेंस में डॉक्यूमेंट है या नहीं। सो दैट इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन अकॉर्डिंग टू द Supreme Court. Supreme Court has said that these clauses are operating independently, और इस situation में you cannot read a limitation into it when the legislature has established no limitation। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, 93 का जो C है वो इन्वेस्टिगेशन की एड के लिए नहीं यूज़ हो सकता। The omission of the word investigation is material, इस बात का ध्यान रखिएगा। All right, so we'll move on further to the next issue, and I think the next biggest issue should be section 95, but I'll just deal with section 94 in brief for the sake of preliminaries. So what does section 94 says? It says search of a place suspected to contain stolen property, forged document, और क्या कहते हैं, और सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, ये 292 से रिलेटेड है ऑफ IPC, जो ऑब्जेक्शनल आर्टिकल है, इट्स अ पोर्नोग्राफिक मटेरियल एक्सेट्रा। सो इन दिस सिचुएशन कौन कौन अथॉरिटीज़ हैं जिस सर्च वारंट दे सकते हैं? DM, SDM और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, और अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड इंक्वायरी, ये एसेंशियल कंडीशन है इसकी। कौन सर्च कर सकता है इन परसुएंट टू वारंट? किसको एम्पावर कर सकते हैं? एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। फिर उसमें एक प्रोसीजर पॉइंट है, ऑब्जेक्शनल आर्टिकल्स इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें काउंटरफीट कॉइन आता है, मेटल टोकन्स एक्ट आता है, करेंसी, फॉल्स डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, obscene objects under 292 of the Indian Penal Code, instrument or materials used for production of any articles in clause A to F। अभी मैं 95 और 96 जरा स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी से थोड़े और छोटे छोटे प्रोविजन हैं उनसे डील कर लेता हूँ। जैसे सेक्शन 97 है, सेक्शन 97 किस में होता है? वेयर द पर्सन हैज़ बीन रॉन्गफुली कन्फाइंड कर लिया गया है, वेयर द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। आप जानते हैं अगर पुलिस ने 24 घंटे से ज़्यादा रखा तो अनलॉफुल अरेस्ट इज टर्न्ड इनटू व्हाट? अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सो DM, SDM और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट द person is confined under such circumstances that confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant, and the person to whom such warrant is directed may search the place person so confined, may search for the person so confined, and search shall be made in accordance therewith,
and the person if found shall be immediately taken before the magistrate, who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. अब 98 किन सिचुएशन में होता है, जहाँ पे women abduct कर ली गई हैं wrongful detention में. So a power to compel restoration of abducted females upon complaint made on oath, ये important है, mark this, of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child under the age of 18 years. तो देखिए फर्स्ट क्लॉज में डिटेंशन ऑफ वुमन की बात कर रहा है, दूसरे क्लॉज में फीमेल चाइल्ड की बात कर रहा है. When a person is under the age of 18 years, when a woman is under the age of 18 years, she'll be called a female child, not a woman. All right. For any unlawful purpose, किसी भी unlawful purpose के लिए, the DM, SDM or JM of first class may make an order for immediate restoration of a woman to her liberty or such female child to her husband, parent, guardian or other person having lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as necessary. तो force भी use कर सकता है अगर उसे लगे कि comply नहीं होगा उस order से. So इस इन sections में कुछ nuances हैं नहीं. The next important thing is section 95, power to declare certain publications forfeited and to issue search warrants for the same. Where any newspaper or book or any document, wherever printed, appears to state government to contain any matter, the publication of which is punishable under 124A, that is relating to sedition. 153A, promoting harmony between the different groups, promoting disharmony between the different groups. 153B, prejudicial acts which endangers national integration. 292, obscene act of, let's suppose, pornographic material. 295A, which violates the religious sentiments. So ये उन्हीं सारी चीज़ों से relate करता है. So 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A of the IPC. State government, what should it do? May by notification. Stating the grounds of its opinion. ये mark कर लीजिए words ground of its opinion, इस पे case law है. क्योंकि अभी आप देखेंगे कि grounds of its opinion शब्द का मतलब क्या है और grounds of its opinion को आप को कैसे interpret करना है. That will be told by the Supreme Court to you. So, stating that the grounds of its opinion declare every copy of the issue of the newspaper containing such matter and every copy of the book or other document to be forfeited to the government, and thereupon any police officer may seize the same wherever found in India, and magistrate may by warrant authorize any police officer not below the rank of an SI, sub-inspector, to enter upon and search for the same in any premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may be reasonably suspected to be. अब subsection 3 पे आ जाते हैं इसके सीधे. No order passed or action taken in this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with the provision of section 96. तो अभी मैं इसके थोड़े से nuance पे आ जाता हूँ. section 96 उसके procedure for setting aside से deal करता है. But let me come to the nuance of that. तो इसमें ground of his opinion की बात की गई है ना, तो ground का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है उसमें बोला है कि there should be a base, foundation, motive और a valid reason. मतलब कोई base होना चाहिए, foundation होना चाहिए या motivation होनी चाहिए for a valid reason. और सुप्रीम कोर्ट ने नारायण दास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में बताया था. नाउ एक इंसिडेंट हुआ था कि किसी न्यूज़पेपर के आइटम ने इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्वेश्चन की थी, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था उसको. सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन ऑब्जेक्शन टू द फैक्ट दैट द बुक कंटेन्ड रॉन्ग मैप्स ऑफ द टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफ द कंट्री. हाई कोर्ट ने जो स्टेट का फॉरफीचर ऑर्डर था
न्यूज़पेपर आर्टिकल और जो भी बुक्स थी उसमें ज्योग्राफी की जो शामिल थी, उनका फॉरफीचर ऑर्डर को वैलिड माना। पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड नहीं माना और नोटिफिकेशन को विशिएट कर दिया और ये बोला कि ग्राउंड्स ऑफ हिज ओपिनियन की बात की गई है सेक्शन 95 में और मेयरली ऑब्जेक्शन की बात नहीं की गई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट से अपना ऑब्जेक्शन दिखाया है, उसने उसको ये दिखाना चाहिए था नोटिफिकेशन में कि वो जो ओपिनियन बनाई है वो किन फैक्ट्स के बेसिस पे बनाई है। गवर्नमेंट ने सीधे बोल दिया कि द बुक्स हैव क्वेश्चन द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया इन अ मैनर विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ द इंडिया। और उन्होंने कोई फैक्ट्स नहीं दिखाया कि व्हाट इज द प्रॉपर मैप, व्हाट इज द प्रॉपर अदर डॉक्यूमेंट्स जो दिखाती हैं कि इंडिया के एक्चुअली टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बॉर्डर्स हैं क्या, व्हाट आर द टेरिटोरियल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया and on what basis the territorial integrity of India is violated by these things। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ अपना ऑब्जेक्शन दिखाया और सीधे बैन कर दिया। दिस कंडक्ट वाज फ्राउंड अपॉन। कोर्ट ने बोला देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन, ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन एंड मेयर ऑब्जेक्शन। क्यों? ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन हमेशा किसी फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, मेयरली किसी ऑफेंस पे नहीं या मेयरली किसी ऑब्जेक्शन पे नहीं। तो ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन आप जब तक फैक्ट्स के साथ पे कंक्लूजन नहीं बनाओगे तब तक आपके ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन का क्लॉज सेटिस्फाई नहीं होता। सो इस केस में ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन दिखाने के लिए आपको गवर्नमेंट को फैक्ट्स भी दिखाने थे जिसके बेसिस पे उसने ऑब्जेक्शन किया, पर गवर्नमेंट ने दिखाया नहीं, उसने सीधे ऑब्जेक्शन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए एक बात का ध्यान रखिए गवर्नमेंट्स जनरली कि ये जितने भी प्रोविज़न है ना ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट करते हैं। तो इतने आराम से आपको अलाउ नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं फॉरफिट कर देने का या डिस्ट्रॉय करने का। जब लिखा है लेजिस्लेचर ने लिखा है कि ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन होने चाहिए, तो इन दैट सिचुएशन योर ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, फैक्ट्स। और उन फैक्ट्स से डिराइव्ड एक कंक्लूजन होना चाहिए और वो दोनों चीज़ें कोर्ट के सामने बेस्ड होनी चाहिए। और अगर आप नहीं दिखा पाते ये तो फिर योर ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर इज बैड इन लॉ एंड कैन नॉट बी अलाउड टू स्टैंड। एक सवाल ये उठता है कि क्या अगर मान लीजिए पहले ओपिनियन पे बैन कर दिया तो क्या सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे के गवर्नमेंट अपने रीजंस बता दे कि इस बेसिस पे हमने किया और ये ओपिनियन को हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इन व्यू ऑफ सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ अगर कोई लैक्यूना है आपके ऑर्डर के इशू में ही शुरुआत में ही डिफेक्ट है तो उसको सेक्शन 93 के पर्पस को और बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और वो कि कितना घातक है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए उन सारी चीज़ों को और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वी कैन नॉट अलाउ द लैक्यूना इन द नोटिफिकेशन टू बी सप्लीमेंटेड बाय एफिडेविट्स। ऐसे केस में आप एफिडेविट से अगर बाकी चीज़ें दिखाते हो तो उसको सप्लीमेंट करने नहीं दिया जा सकता। ऐसी सिचुएशन मैं थोड़ा ऑफ कोर्स जाके आपको बताता हूँ कि जब आपको याद है कि ऑक्सीटोसिन बैन हुआ था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप जनरली आप उसे सोल्व नहीं कर सकते, बड़ा आपको लिमिटेड लाइसेंस दिया होगा, उसका वाइड स्प्रेड यूज़ पे बैन लगा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात बोली थी और जस्टिस रविंद्र भट्ट का जजमेंट था, उसमें उन्होंने बोला था कि वाइल when an order banning has been issued by the central government or any government for that matter, then when we constitutionally review such order, then the governments cannot be allowed to rectify the error by supplementing it by further reasons which have occurred after the issue of such forfeiture or the ban order। इसका मतलब ये है कि when जब मान लीजिए मैं गवर्नमेंट मैंने कोई ऑर्डर किया बैन करने का किसी भी चीज़ को और फिर उसका जुडिशियल रिव्यू हो रहा है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर मान लीजिए
मेरे बैन ऑर्डर के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे मेरा बैन ऑर्डर जस्टिफाई हुआ, तो मैं उसको नहीं यूज़ कर सकता कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने बोला है कि आपका बैन ऑर्डर आपके ऑर्डर के इंसेप्शन से देखा जाएगा, नॉट बाय द फर्दर इवेंट्स दैट हैज़ हैपेंड। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू की एक डॉक्टर ने कहा ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से, सब कॉन्स्टिट्यूशन में डील होगा, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू ऑल दिस फॉर जस्ट जिससे आपका दिमाग थोड़ा फर्टाइल रहे इन सब मैटर्स पे लेके, तो ज़्यादा उस पर कोई एंशियस मत होइएगा। So, going further, the power of forfeiture which has been conferred by CRPC upon the state government is a drastic power, the exercise of which has to be strictly conditioned by the due observance of the requirements of Section 95. Section 95 does not empower the state government to issue an order of forfeiture merely because it apprehends that a law and order situation will happen. अब बॉम्बे हाई कोर्ट किस चीज़ की बात कर रहा है? एक प्ले हुआ था, मैं नाथुराम गोडसे बोलचे, कुछ ऐसे था, माय मराठी इज़ नॉट सो गुड। सो उसको लेके फॉरफीट किया था, उसके लेके उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसको 2001 में सेट असाइड किया गया था। राइट टू पब्लिश is itself a facet of the right to freedom of speech guaranteed to all citizens under Article 19(1)(a) of the Constitution. So you have to read this section with Article 19(1)(a) also. The power under Section 95 of the Code, therefore, being of a nature of extraordinary power, must be used with care and circumspection, as it constitute an inroad into the enjoyment of the right guaranteed under Article 19(1)(a). And as such, the conditions for exercise of this power must be rigidly adhered to. बड़ा ही strictly construe किया जाएगा ये, इसको और liberally construe नहीं करेगा। तो that was the only nuance that was contained in it, कि order आपका mere objection पे नहीं, grounds of opinion पे होना चाहिए। दूसरा, इसका strict construction होगा। और तीसरा and last, कि since it is a severe provision and it violates article, it has a tendency to violate आर्टिकल 19(1)(a), तो इसका पहली बात लिबरल कंस्ट्रक्शन ही वेरी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होगा। और साथ में गवर्नमेंट्स को जो ग्राउंड्स ऑफ फॉरफीचर हैं, ये ऑर्डर, ये नोटिफिकेशन ऑर्डर के साथ ही होने चाहिए, ये बाद में वो सप्लीमेंट करना अलाउ नहीं किया जा सकता। पर इसे जहाँ तक सप्लीमेंटेशन की बात है, ये डिपेंड ऑन द फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एज फार एज दिस इज कंसर्न। क्योंकि देखिए अभी तो उस केस में हेल्ड कर दिया कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट्स यू कैन नॉट बी अलाउड टू बैन, लेकिन अगर मान लीजिए कल को कोई ऐसा बहुत ही डेंजरस मटेरियल पब्लिश होता है विच एक्चुअली हैज़ द टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस एंड विच एक्चुअली हैज़ द टेंडेंसी टू कॉज द फिसिपैरिस टेंडेंसीज टू एग्जिस्ट विद इन द कंट्री, मतलब फिसिपैरिस टेंडेंसीज का मतलब कि कंट्रीज़ को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है, या टेरिटोरियल बॉर्डर्स या सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं कि टेरिटरीज अलग हो जाए। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल होता है तो हो सकता है कि टुमारो हाई कोर्ट में अलाउ दिस, हाई कोर्ट में अलाउ सप्लीमेंट्री मटेरियल टू बी सबमिटेड। सो अभी की पोजीशन जो थी मैंने बता दी। नाउ सेक्शन 96 सिंपली बस इतना सा कहता है कि हाई कोर्ट ही सेट असाइड करेगा ऐसा डिक्लेरेशन या फॉरफीचर, और इसके लिए आपको 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा। सो मार्क द 2 months पीरियड दैट इज कंटेन्ड अंडर सेक्शन 96(1), 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, और आप अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में मिनिमम 3 जजेस बैठेंगे वाइल हियरिंग दिस केस, और अगर 3 जजेस नहीं हैं तो सारे मतलब मान लीजिए किसी हाई कोर्ट में 3 जज हैं ही नहीं, ये अक्सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है, तो सारे जज बैठ जाएंगे जो भी हैं। अब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले होता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। एक्चुअली दे वांट, कई हाई कोर्ट्स में कई बार एक ही जज रहते थे, 2 जजेस भी नहीं पोस्टेड थे, तो ऐसे केस में सिंगल जज भी हेयर कर सकता था। इट्स मेरली अ प्रोसीजरल मैटर। तो जनरली क्या है, इट विल कंसिस्ट ऑफ 3 or more जजेस, और जहाँ पे 3 or more जजेस नहीं है वहाँ पे स्पेशल बेंच कंपोज होगी जिसमें सारे जजेस शामिल होंगे। और जब हियरिंग होगी तो हाई कोर्ट एविडेंस, जितना भी एविडेंस और प्रूफ और जितना भी मटेरियल जिसकी बेसिस पे बैन हुआ या डिक्लेरेशन हुआ, वो सारा हाई कोर्ट के सामने प्लेस किया जाएगा। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेट असाइड कर देगा, ठीक है, और मेजॉरिटी ओपिनियन के हिसाब से सेट असाइड होगा। सो दिस वाज द ओनली इशू दैट इसमें था। देन वी कम टू सेक्शन 100
सेक्शन 100 में क्या है कि जब क्लोज स्पेसेस है पर्स कि किसी के घर पे जाके आप सर्च कर रहे हैं, तो एक डॉक्ट्रिन है एवरी मैन्स हाउस इज हिज ओन कासल, तो उसको बहुत आराम से वायलेट करने नहीं दिया सकता। इट इज़ ऑल्सो इनरोल्ड इनटू अ राइट टू प्राइवेसी। तो इसका जो प्रोसीजर है ना, इसको ड्यूली कंप्लायंस होना चाहिए। तो पहली बात है वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट फॉर सर्च होना चाहिए, और अगर वो मांगे तो वारंट दिखा देना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं अलाउ करे तो फिर आप दरवाज़ा तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो प्रेजेंस जो सर्च होनी चाहिए वो पंच विटनेस के सामने होनी चाहिए। व्हाट आर द पंच विटनेस? टू और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। फिर आगे क्या है, जो सीजर हुआ है बाय द वर्च्यू ऑफ जनरल सर्च, वो सारा सीजर एक सीजर मेमो में होगा जिस पे काउंटर सिग्नेचर भी होगा। वुमेन को अगर का पर्स, इफ ड्यूरिंग द सर्च यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू सर्च द पर्सन ऑफ अ वुमन, मतलब फिजिकल सर्च होनी है वुमेन की, तो स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी होंगी और इट शुड बी डन बाय अ वुमन पुलिस ऑफिसर ओनली। ठीक है। और जितनी भी लिस्ट है जिसका सीजर लिस्ट, सीजर मेमो बना है, इसकी एक कॉपी अक्यूज के पास जाएगी, इसकी एक कॉपी उस पर्सन के पास जाएगी जिसके घर पे सर्च हुई, और दूसरी कॉपी आपको मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करनी होगी। ऑलराइट। और अगर क्या कहते हैं, मान लीजिए पंच विटनेस को पुलिस ऑफिसर ने बुलाया या किसी भी पर्सन, किसी भी अथॉरिटी को जिसको जनरल सर्च वारंट दिया गया है, और वो आने से मना कर देता है, तो सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी का वायलेशन मान लिया जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपको पता है कॉग्निजेंस, इसमें कॉग्निजेंस की टेल अटैच्ड है सेक्शन 195। सो व्हेनेवर यू आर रीडिंग द ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 195 ऑफ द सीआरपीसी आल्सो, जो कॉग्निजेंस के लिए बार करती है। अब जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जिसमें नुआंसेस कंटेंड है, अरे मिसलेनियस प्रोविजन का लास्ट है जिसमें नुआंसेस है, क्योंकि 101 तो सीधे डिस्पोजल ऑफ सर्च बियॉन्ड द प्लेस जुरिसडिक्शन है, वो सिर्फ प्रोसीजरल प्रोविजन है, तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बस इसको आप ध्यान में रखिए कि वही है कि अगर मैजिस्ट्रेट की प्लेस या कोर्ट की प्लेस नियरर है तो उनके पास ले जाएगा लिस्ट और डॉक्यूमेंट अंडर 101, और अगर जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो पास में है तो उसके पास ले जाएगा। सो यू शुड यू कैन, आई थिंक यू पीपल आर कॉम्पिटेंट एनफ टू रीड इट बाय योरसेल्फ, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो यू कैन आस्क मी। तो इसलिए ये आते हैं नेक्स्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोविजन जो है 102 ऑफ द सीआरपीसी, पावर ऑफ द पुलिस टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। एनी पुलिस ऑफिसर में सीज एनी प्रॉपर्टी को मार्क कर लीजिए विच में बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, और विच में बी फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेस which create suspicion of commission of any offense। तो देखिए बड़ा वाइड क्लॉज है ये, any property और any offense का यूज किया गया है। So it isn't just confined to cognizable offense। All right, such police officer subordinate to the officer in charge of the police station shall forthwith report the seizure to such officer। और officer in charge of police station किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। और अगर प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके है तो 457 और 458 के प्रोविजन से वो कंप्लाई करेगी। और whenever you're reading section 102 you have to keep in mind the provisions of section 451 of the CRPC to 459 of the CRPC, उनके साथ रीड विद किया जाएगा। ऑलराइट। अब इसमें नुआंस क्या है? नुआंस सिर्फ इतना सा है कि क्या बैंक अकाउंट सीज कर सकता है? इसमें क्या ना, पुलिस ऑफिसर सीज बैंक अकाउंट अंडर सेक्शन 102। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तपस्वी नियोगी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ कर सकता है। अक्सर क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और आपका करप्शन केसेस में अगर बैंक अकाउंट ही सील करने की अलाउंस नहीं दी तो अक्सर क्या करते हैं कि जो अक्यूज पर्सनस होते हैं वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं आउटसाइड इंडिया और दिखाते हैं कि देखिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, मुझे किस बेसिस पे इन लोगों ने करप्शन चार्ज या मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा दिया। तो ये ज़रूरी पाया गया कि 102 में बैंक अकाउंट सीज करने की पावर रीड इन करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि यस द पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर टू सीज द बैंक अकाउंट ऑफ द अक्यूज्ड एंड और in that situation the power is actually contained under 102 of the CRPC। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए
मेजॉरिटी हाई कोर्ट्स के व्यू का सपोर्ट किया और कर्नाटका गुवाहाटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के व्यू से डिसअप्रूव किया, जिन्होंने बोला था कि वो बैंक अकाउंट नहीं सीज कर सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग इस पे ये थी, एक तो कोर्ट ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए टाइम बहुत लेते हैं, ठीक है, और अगर ये मान लिया जाए कि बैंक अकाउंट का सीजर नहीं हो सकता, तो जितना भी मनी आता है हवाला स्कैम से या जितने भी स्कैम से, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। और अगर एंड में ये कंक्लूजन आया कि ये जो पैसा कलेक्ट हुआ है स्कैम के थ्रू या हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन था, तो अक्यूज पर्सन क्या सिंपली कर सकता है, दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र कर दे, स्वीडन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे मान लीजिए, तो कोर्ट तो पावरलेस हो जाएंगे ना ऐसी सिचुएशन में कि वो मनी कहाँ से रिकवर करवाएंगे। तो इन ऑर्डर टू गेट विद दीज सिचुएशंस द 102 हैज़ बीन कन्फर्ड द पावर टू सीज बैंक अकाउंट्स। और ध्यान रखिए 102 में एक बार पुलिस ऑफिसर सीज करता है तो इट इज़ सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, तो ये ऑटोमेटिकली कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ जाता है। सो ये देखा गया जिससे कि कोर्ट का होल्ड उन मनी पे भी रहे जो इलीगल ट्रांजैक्शन के थ्रू आई हैं, वो उसकी गिरफ्त से बाहर ना जा सके, इसीलिए द कोर्ट अलाउड सच इंटरप्रिटेशन टू बी मेड और इट डिसएग्रीड विद द व्यू ऑफ कर्नाटका गुवाहाटी एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट, और बोला इट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट लॉ। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरली बिकॉज द वर्ड एनी प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड, it doesn't mean that immovable property also comes under this situation। अब देखिए सीज शब्द का प्रयोग किया है, और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं करते, यू डू नॉट सीज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू पोजेस इट। ऑलराइट, तो ये इशू अभी रिजॉल्व हुआ है नेवाडा प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में 2019 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से है कि सेक्शन 102 of the CRPC does not within its scope contain seizure of an immovable property। हाँ, documents of title of the property तो आप सीज कर सकते हो, पर immovable property itself you cannot। कि मान लीजिए पुलिस ने, मान लीजिए किसी का घर is a result of a scam, let us suppose क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में हुआ भी था, हाउसिंग स्कैम हुआ था कोई, वेस्ट बंगाल में भी, हाँ सॉरी बॉम्बे में हुआ था आदर्श हाउसिंग स्कैम। तो आदर्श हाउसिंग स्कैम में अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर पूरी हाउसिंग को ही सील कर दे, कहते नहीं हम इसको 102 में सील करते हैं, तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते। आदर्श स्कैम पे केस नहीं था, ये नेवाडा प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। आदर्श स्कैम का तो मैं एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। सो कोर्ट ने बोला कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते, आप डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि प्रॉपर्टी किसके नाम की है, कौन ओनर है, वो उनको डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को तो आप सीज कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी इटसेल्फ को सीज नहीं कर सकते। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीज अंडर 102 ऑफ द CRPC। तो लैंग्वेज ऑफ 102 ऑफ द CRPC ऐसा इंटरप्रिटेशन पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं होने दे सकती कि पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू डिस्पोजेस अ पर्सन इन ऑक्यूपेशन देन टेक पोजेशन। मान लीजिए किसी हाउसिंग स्कैम का जो कोई केस है हाउसिंग स्कैम से रिलेटेड, अब उसके अंदर एक पर्सन रिजाइड कर रहा है, तो क्या अगर 102 में अगर सीजर करना है पुलिस ऑफिसर को, सो कैन ही बी अलाउड टू डिस्पोजेस अ पर्सन एंड देन टेक, क्योंकि तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा। Whenever the seizure is happened, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को पोजेस करने का राइट होता है इसमें, तो प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर उसे रह रहा है तो उसे बाहर निकालो एंड देन सीज द प्रॉपर्टी। दिस कैन नॉट बी अलाउड, लैंग्वेज ऑफ द 102 डज नॉट अलाउ इट। और सीजर शब्द इटसेल्फ कन्फाइंस इटसेल्फ टू अदर प्रॉपर्टीज विच आर नॉट इमूवेबल इन नेचर। इमूवेबल प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जाता, सीज होता है ना गिरफ्त में ले लेना। यू पोजेस एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यू डू नॉट सीज इट। The court said in absence of legislation conferring this express or implied power under 102 of the CRPC, we मतलब Supreme Court hesitate to hold that this power should be read into 102 to confer a police officer the power to seize an immovable property। 102 of the CRPC is not
per se an enabling provision which gives police officer the act to seize the property, to do justice and to hand over the property to a person whom the police officer feels is the rightful owner. ये पर्पस नहीं है 102 का. 102 का पर्पस बस इतना सा है कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है तो वो उस प्रॉपर्टी को सीज कर ले, अगर वो मूवेबल है या बैंक अकाउंट है, एंड प्लेस इट बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट. कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसका क्या करना है, नॉट द पुलिस ऑफिसर. दूसरी बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जितने भी मैटर्स होते हैं, जो टाइटल और बाकी चीज़ें हैं, ये सिविल नेचर के होते हैं, दे आर नॉट ऑफ अ क्रिमिनल नेचर. सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि matters related to title, dispossession, possession are the realms which fall into the jurisdiction of the civil court. And court said कि we must discourage and stall any attempt to convert civil dispute in criminal cases. अक्सर क्या होता है, जो कोर्ट में सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल केस बनते देर नहीं लगती, और खासतौर से पुलिस ऑफिसर भी अपना उसमें कंसल्टेशन बताने लगते हैं कि हम डिस्पोजेस करवा देंगे. पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव अ राइट टू डिस्पोजेस अ पर्सन हु हैज द होल्ड ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो 102 के थ्रू तो वो कर ही नहीं सकता, और आउटसाइड ऑफ दैट रेल्म ऑल्सो इट डज नॉट हैव अ पावर. तो 102 का रेल्म इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं फॉल करता. सो it is not proper to hold that 102 of the CRPC empowers a police officer to seize immovable property, land, plots or residential houses, streets or similar properties. Given the nature of the criminal litigation, seizure of an immovable property by police in the form of an attachment and dispossession would neither facilitate investigation to collect evidence or material, but rather it will give rise to new set of facts which may convert a civil dispute into a criminal case. That construction of 102 of the CRPC cannot be allowed where the power is conferred upon the police officer to possess an immovable property by the virtue of 102 of the CRPC. हाँ, एक एक्सेप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को सीज कर सकते हो बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ बीइंग सीज्ड. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स क्या होते हैं कि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स होते हैं, जैसे आप जिस भी घर पे रहते हैं उसके कुछ पेपर्स होते हैं, वो बताता है कि कौन ओनर है, या अगर आप रेंट पे हो रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट है. डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स की कैटेगरी में ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं, उनको सीज कर सकता है. मान लीजिए आदर्श हाउसिंग स्कैम का में कोई स्कैम हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सीज कर ले, सबका, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें सबका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सीज कर ले, जो भी लोग फ्लैट ओनर्स थे, और कोर्ट के कस्टडी में दे दे. लेकिन वो इमूवेबल प्रॉपर्टी इटसेल्फ नहीं सीज कर सकता. ऑलराइट, ये रेल्म कोर्ट्स का है, स्पेशली सिविल कोर्ट्स का. ठीक है, सो दैट वाज द ओनली नुआंस दैट नीडेड टू बी डेल्ट विद. और बाय दिस योर मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसीज आर ओवर. दो प्रोविजन और मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ. मैजिस्ट्रेट जो भी सर्च के लिए वारंट इशू करता है वो अपनी प्रेजेंस में भी करा सकता है 103 में. और कोई भी कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और थिंग्स प्रोड्यूस्ड, मतलब अगर कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट या चीज़ लाएगा तो इम्पाउंड कर सकता है उसको. मतलब इम्पाउंड करना मतलब अपनी कस्टडी में रख लेना. अक्सर क्या करते हैं, जब बेल ग्रांट करते हैं ना, तो कहते हैं पासपोर्ट प्रोड्यूस करो मेरे सामने, और जजेस क्या करते हैं, पासपोर्ट को इम्पाउंड कर लेते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल. So this happens. अब उसके भी अपने नुआंस है कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. They are conflicting judgments of the issue. But remember this, the general thing is this, that the court के सामने जो भी डॉक्यूमेंट या चीज़ लाई गई है उसको वो इम्पाउंड कर सकता है एंड कैन डिसाइड कि मैं ये तब दूंगा जब ट्रायल कंक्लूड हो जाता है या अपील और रिविजन फाइनलाइज हो जाती है. So these were the things. So now we are done with the miscellaneous provisions. From tomorrow we'll start with the bail. All right. bail के बाद हमारा बेल का चैप्टर खत्म होने के बाद हमारा ट्रायल होगा. ट्रायल के बाद हमारा अपील और रिवीजन होगा. देन लास्ट विल डील विद द इनहेरेंट पावर एंड मेंटेनेंस. देन वी आर डन विद द सीआरपीसी. ऑलराइट, सो दिस वाज द लास्ट थिंग. द केस लॉज हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू ऑन द वेबसाइट, सो यू कैन एक्सेस इट. एंड आई थिंक all of the nuances of the miscellaneous provisions have been dealt with.